Dear student, welcome back to Dr. Shrikant Pharmacy channel. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy video. So today I came with the one more topic which is in inventory control, that is in methods of inventory control. In previous video we are discussed the perpetual inventory control system, ABC method and VAD analysis. So in this class we are planned for know the what is a lead time. This method is used for determining the inventory control system. It is also very much important like the other methods. So in this method the time gap between the placing of order and receiving of material, so the in between the time will be there na, so that time is called as a lead time. For example, placing of order for purchase item is a 10/5/2021 is there, and time of material actually received at stores on 9th of June 2021. So means almost 1 month duration is required to receive the items which are placed for the order. So this 1 month duration is there na in between, so that is called as a lead time. That is called as a lead time. Lead time मतलब क्या हो जाता है, ये बोलते हैं इसको टाइम गैप. टाइम गैप मतलब क्या हो जाता है, हम जो ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, प्लेस करने के बाद वो जो ऑर्डर प्लेस करे सो आइटम जब हमारे को रिसीव होता है ना स्टोर को, वो टाइम को बोलते हैं लीड टाइम. मतलब समझ लीजिए आज प्लेस किए हम लोग ऑर्डर 10 तारीख 5वां महीना 2021 को ऑर्डर दिया. वो ऑर्डर हमारे को उसका जो आइटम मिला है 9 तारीख जून ऑफ 2021 को हमको आइटम मिला. तो ये बीच का जो टाइम रहता है ना, जो दिन रहता है ना, उसको बोलते हैं लीड टाइम. ओके, लीड टाइम. दिस लीड टाइम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द retailers or the wholesaler, because the goods has to be received from the manufacturer to wholesaler and wholesaler to retailer. For example, retailer, you place one order today morning, 1 hour only you will get the items. Coming to the wholesaler, if they are placed an order, it will require minimum 1 day, 2 day, 1 week or maybe more than that. So that is the lag time or lead time, which is very important for the profession of pharmacy, because we have to maintain the required stock in a proper way. If the lead time is more is there, so based on that what are the important items are there, you have to make the more the storage or more the stock till the placed order to receive, until that stock is maintained. So that stock is called as a safety stock. There are two types of lead time will be across in the businesses. One is called as an administrative or service lead time. It is also called as an internal lead time. Another one is a supplier's lead time. There are two main types of the lead times are there. One is an administrative or service lead time. What is this administrative? This is a time taken by the administration for placing the order. मतलब हम जो ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, उसको क्या क्या आइटम्स होना है, कौन सा डिपार्टमेंट में क्या क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से लिस्ट बना के हम जो ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लीड टाइम. एग्जांपल समझ लीजिए, कौन सा भी आइटम लेना है, जैसे बड़े इंडस्ट्री वाले आइटम कुछ रॉ मटेरियल मंगवाना बोले तो एक पहली बात क्या करते वो लोग कोटेशन देते. उसके बाद कोटेशन आने के बाद कंपेयर करते 2-3 कंपनी का क्या रेट पड़ रहा है हम लोगों को. उसके बाद क्या करते, जो भी मटेरियल रहता है ना वो इंस्पेक्ट करके हम लोग प्लेस करते हैं ना, वो उसके लिए बहुत सारे टाइम होना पड़ता है. खासकर को इंडस्ट्री लेवलों को बहुत ही टाइम बढ़ता है. जैसे होलसेल रहे तो उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर रिटेल रहे तो और आसान है. ये खास कर को ये जो लीड टाइम रहता है ना, इंडस्ट्री वालों को बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. क्यों बोले तो इंडस्ट्री मतलब क्या हो जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी रहता है, एक कंपनी अलग अलग जगह पे रहने से इसका ज़्यादा हो जाता है. ये सप्लायर्स लीड टाइम बोले तो क्या बोले तो, सप्लायर्स मतलब हम जो ऑर्डर डालने के बाद सप्लायर्स हमको सप्लाई करता है ना, वो कितना टाइम लगता है. समझ लीजिए ऑर्डर प्लेस किया, सप्लायर को
ऑर्डर मिल गया, वो जो ऑर्डर मिलने के बाद उन्हों प्रोडक्शन करने के बाद उसको जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमको भेजने के लिए कितना टाइम लगता है, उसके लिए बोलते हैं सप्लायर्स लीड टाइम। परचेज डिपार्टमेंट मस्ट नो हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द मटेरियल। ये खास करके ये जो भी ऑर्डर देते हैं ना परचेज डिपार्टमेंट वाले, बहुत ही जानकारी रखना कौन सा आइटम कितना टाइम लगता है। अगर कौन सा आइटम हम लोगों को एक ही दिन में मिलता, कौन सा आइटम हम लोगों को हफ्ते में मिलता, कौन सा आइटम हमारे को महीने में मिलता, इसके हिसाब से हम लोग प्लान करके हम लोग ऑर्डर प्लेस करना। अगर ज़्यादा 1 महीना टाइम लगता बोले तो उसके लिए हम लोग 1 महीने को क्या ज़रूरत है उतना स्टॉक हमारे पास सेफ्टी स्टॉक बोल के रखे रहना पड़ता है। सो उससे क्या हो जाता है, आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं रहता, लो स्टॉक भी नहीं रहे, जैसा हम लोग मैनेज कर सकते हैं। Okay, so these are the major important the administrative as well as the supplier lead time. So the conclusion is that longer the lead time, लार्जर दी सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ता है और उसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। शॉर्टर द लीड टाइम, शॉर्ट सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ता है और लेसर इन्वेस्टमेंट रहता है। समझ लीजिए आज हम लोग ऑर्डर दिया, 2 दिन में हमारे को स्टॉक मिलता बोलता है, उसको शॉर्ट बोलते, शॉर्ट लीड टाइम बोलते हैं, मतलब उतना ज़रूरत नहीं है हम लोग स्टॉक रखने के लिए। अगर 1 महीना 2 महीना होता बोले तो उसी के हिसाब से हम लोग जो रहता है ना स्टॉक में हम लोग मैनेज करना उतना अमाउंट का। ओके, सो इसलिए लेसर द लीड टाइम द बेटर विल बी द इन्वेंट्री कंट्रोल। समझता हूँ ये क्लास से आपको बहुत ही सरल से लीड टाइम मतलब क्या हो जाता है, लीड टाइम किस तरह से हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लीड टाइम मतलब क्या हो जाता है, सप्लायर लीड टाइम क्या बोले तो क्या होता है बोल के समझ में आ गया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल कंटिन्यू द नेक्स्ट मेथड इन द नेक्स्ट वीडियो।